Hi, today we will be starting with cell wall. Yes. So first of all, okay, I hope you all are ready. This is an extra session where we discuss beyond NCRT. So first off, we go with cell wall. What is it? It is an outer protective, non-living, rigid. So first of all, it is always located towards the outer. Okay, it is protective. It is non-living. Okay, your cell would be living, but the cell wall is non-living because it doesn't perform any living thing functions. It is rigid. Okay, it is rigid. One second. It is rigid, and it is also a covering of which cells? Covering of plant cells, fungi cells, and plant fungi and some prokaryotes, very primitive type of cells. So these are some features of the cell wall. It is outer, it is protective, it is non-living, it is rigid, and it is a covering of plant cells, fungi, and prokaryotes. Okay, now it was first observed by Robert Hooke. So you might think that Robert Hooke observed just a cell, but he actually observed the cell wall. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ठीक है, आई शो यू. He okay, I'll show you a picture of it. What did Robert Hooke see under the microscope? And there are certain, actually he drew it, okay, he didn't, whatever he saw he ended up drawing it. Like, I think I can take this figure. Okay, whatever he saw he actually ended up drawing it. So we can put a picture of that. Oops. Right, this is what he saw. Okay, so now when he saw this, these are actually this you see this area with very white, extremely white covering, because back then there was no printing or photographic camera, so they had to use their drawings, to find out. So when he saw this was actually, if you see it, these are actually white cells. Okay, these are actually this white area. It is all your cell wall. So he was the first one to discover the cell wall, because he not only discovered the cell, but he also observed and described the cell wall. Obvious सी बात है, उन्होंने ये नाम रखा. In the year 1665, in Cork, tissues of oak. Cork tissues of oak. Cork is actually not a plant's name, but it is a woody part of the plant which is dead. So he actually observed the cork tissues of which plant? Oak. Okay, he observed the cork tissues of oak, which is also Quercus suber plant. It is absent in animal cells, gamete, and some zoospores. So it is absent, that is, it is not present. It's not present in animal cells. Animals don't have cell wall. Now cell walls का main function होता है protection. तो अगर कोई ऐसा organism है which cannot protect itself, जैसे plants हैं, they are non-motile. If the weather is bad, they can't move away, they can't find shelter, so they have cell walls. Whereas animal cells, they don't need, right? Gametes के पास cell wall नहीं होती. अब देखो gametes का क्या function होता है, बहुत सारे practical इसके reasons हैं. एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती बिकॉज उनके पास प्रोटेक्शन के लिए वो मूव कर सकते हैं, है ना. दे आर मोटाइल, दे हैव मोटिलिटी, दे कैन मूव फॉर प्रोटेक्शन. गैमीट्स, दे हैव टू फ्यूज. जैसे ये स्पर्म है, टेरेबल डायग्राम, दिस इज अ स्पर्म एंड दिस इज एन एग. दे हैव टू फ्यूज. उन दोनों के न्यूक्लियस को क्या है, मिलना है. तो उनका अल्टीमेट एम है कि वो ईजिली फ्यूज़ हो जाएं. बट सोचो कि यहाँ पे इतनी थिक, यहाँ पे मतलब ना एक प्रोटेक्टिव लेयर हो, और यहाँ पे इतनी थिक प्रोटेक्टिव लेयर हो, और उसको बड़ा भी कर दे. तो अब बताओ फ्यूजन ईजी होगा क्या. अब फ्यूजन के लिए क्या करना होगा,
बहुत सारी लेयर्स को इरेज करना होगा, ऐसे बहुत सारी लेयर्स को, और फिर जाके वो फ्यूज़ होंगे। जबकि सेल मेम्ब्रेन अगर सिर्फ है तो ईजी रहेगा, है ना। इफ़ दे आर जस्ट लाइक दिस थिन सो इट विल बी ईजी टू फ्यूज़, ठीक है, अंडरस्टूड। तो गैमीट्स के पास भी नहीं होती सेल वॉल बिकॉज वो ईजिली फ्यूज़ होना चाहते हैं, और जूस्पोर्स के पास भी नहीं होती। जूस्पोर्स क्या होते हैं, आई विल टेल यू राइट नाउ, मुझे डेफिनेशन नहीं पता बट आई नो व्हाट दे आर वेरी टाइनी लार्वा लाइक zoospores. Zoospores are motile or sexual spores that use a flagellum for locomotion. ये जो है ना वही बहुत छोटे फ्लाजेला की मदद से जो स्पोर्स जो लोकोमोट करते हैं उन्हें जू स्पोर्स बोलते हैं। उनके पास भी सेल वॉल नहीं होती बिकॉज वो मूव कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। फंगल सेल वॉल, अब सबकी जो सेल वॉल्स हैं वो डिफरेंट होती है। जो फंगस है और जो प्लांट्स हैं उनकी लिविंग कंडीशंस, रहने सहन का तरीका सब कुछ अलग होता है, उनकी सेल वॉल्स भी डिफरेंट होती है। तो फंगल जो सेल वॉल होती है, ठीक है, फंगल सेल वॉल, जो फंगस की सेल वॉल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड फाइबर्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड फाइबर्स विद आइदर काइटिन होता है फिर, या सेल्यूलोज। ओके, तो जो फंगल सेल वॉल होती है उसमें पॉलीसैकेराइड फाइबर्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स के। तो फंगस जो है यूजुअली कैसी दिखती है, वो खुद का खाना भी नहीं बनाती, और जो है फंगस जो है उसका खुद का खाना नहीं बनाते, और वो ना उसके बहुत सारे वो स्पोर्स छोड़ती है जो कि हवा में घूमते रहते हैं, एंड यू नो ब्रेड मोल्ड एंड स्टफ। तो फंगस इज जनरली लाइक अ थैलस, ज़्यादा उसमें कुछ स्ट्रक्चर होता नहीं। तो एक बहुत थिक प्रोटीन वाली उसने सेल वॉल बनाई है। पॉलीसैकेराइड्स मतलब ना मोटे मोटे जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाली सेल वॉल उसने बना रखी है फंगस ने, है ना। ठीक है, तो फंगस ने ऐसे सेल वॉल बना रखी है, बिल्कुल थिक सेल वॉल, मतलब इतना ज़्यादा उसका डायमीटर है, इतनी बड़ी पॉलीसैकेराइड्स वाली सेल वॉल बना रखी है। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, काइटिन हो सकता है, या फिर जो है सेलुलोज भी थोड़ा होता है। तो फंगस की सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, उसमें काइटिन या सेलुलोज इज़ नॉट ग्रीन इन कलर, सॉरी अबाउट दिस, जो है काइटिन हो सकता है या थोड़ा सेलुलोज भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर फंगल सेल वॉल। दिस इज आर फंगल सेल वॉल, ओके। इसके बाद ठीक है, फंगस को हमने इससे लिख लिया। इसके बाद जो है हमारी एल्गल सेल वॉल, फंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था, काइटिन। इसके बाद हम बात करेंगे एल्गल सेल वॉल की। एल्गल सेल वॉल मतलब एल्गे की सेल वॉल। इसमें क्या होते हैं, सेलुलोज, सेलुलोज तो डेफिनेटली बिकॉज इट्स लाइक अ प्लांट, गैलेक्टन्स, मन्नन्स, ये भी इनमें प्रेजेंट होता है। गैलेक्टन्स और मन्नन्स भी प्रेजेंट होता है। मन्नन्स या मैनन्स, गैलेक्टॉन्स मैनॉन्स, सॉरी दिस इज़ नॉट ए, दिस इज ओ, गैलेक्टॉन्स मन्नॉन्स, ठीक है। गैलेक्टॉन्स मन्नॉन्स एंड और भी थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं, जैसे कि मिनरल्स लाइक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट्स, ठीक है, कैल्शियम के कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सेलुलोज के साथ, देखो सेलुलोज अकेला एक मटेरियल नहीं हो सकता है सेल वॉल में, उसके साथ ही साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे अगर इधर भी सेलुलोज है तो बस सेलुलोज नहीं है, उसमें पॉलीसैकेराइड फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इधर भी जो है सेलुलोज है तो बस सेलुलोज नहीं है, उसमें गैलेक्टन्स, मन्नन्स और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्गे के बाद बात करते हैं हम इन हायर प्लांट्स, ठीक है। एल्गे तो बहुत लोअर प्लांट है, हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स, ठीक है। इन हायर प्लांट्स द सेल वॉल फाइबर्स आर मेड ऑफ cellulose and are embedded in higher plants the cell wall fibers are made of cellulose
जो सेल वॉल के फाइबर्स होते हैं वो जो है सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज को मैंने थोड़ा ऐसे, जैसे फाइबर्स है ना, ये सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है। सेल वॉल फाइबर्स आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड आर एम्बेडेड इन अ हाईली क्रॉस लिंक्ड मैट्रिक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। सेलुलोज के जो बने होते हैं और जो है पॉलीसैकेराइड्स का एक मैट्रिक्स होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रॉस लिंक्ड मैट्रिक्स, ऐसे एक मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर ये धसे होते हैं। जो सेलुलोज है ना, ऐसे ही पॉलीसैकेराइड, ये पेक्टिन हमने डाल दिया, ठीक है। In made of cellulose and embedded in highly cross-linked matrix of polysaccharides like pectin, lignin, ठीक है, हेमीसेल, हेमीसेलुलोज, ठीक है, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, इनका एक इतना धसा हुआ धासा सा मैट्रिक्स होता है जो कि बिल्कुल एक लिक्विड जैसा नज़र आता है, ठीक है। ऐसा एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ठीक है, इन सब चीज़ों का एक मैट्रिक्स होता है। आई विल काइंड ऑफ ऐसे, मतलब अच्छे से धसा होता है। ऐसे एक धसा हुआ सा मैट्रिक्स होता है और इसमें जो है सेलुलोज का जो स्ट्रैंड्स है वो इसमें एम्बेडेड होते, दिखते भी नहीं है, इस तरीके से वो इसमें एम्बेडेड होता है। तो इसमें क्या है, और इसको हम लेबल करेंगे, दिस इज सेल्यूलोज, ठीक है, दिस इज पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, और ये क्या होता है, हेमीसेलुलोज, और ये क्या होता है, लिग्निन, ठीक है। तो ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से बिल्कुल एक लिक्विड बन जाता है। ये सब प्रेजेंट होता है ना, तो बिल्कुल लिक्विड बन जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ये तुम्हारे लिक्विड बन जाता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो जाता है। मैट्रिक्स में क्या है तुम्हारा, मैट्रिक्स में हेमीसेलुलोज है, matrix has hemicellulose, pectin, lignin, and then cellulose strands are embedded, ठीक है। सेल वॉल इज यूजली परमिएबल, सेल वॉल यूजली क्या होती है, सेल वॉल इज यूजली, सेल वॉल के बारे में बता रहे हैं, इज यूजली परमिएबल। तो यू अंडरस्टैंड, ये प्लांट्स का बताया ना मैंने अभी, हायर प्लांट्स का बताया ये मैंने तुम लोगों को। हायर प्लांट्स में जो है इस तरीके के सेलुलोजिक स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स होता है, उसमें जो है सेलुलोज के स्ट्रैंड्स इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं। क्या बताया गया है कि सेलुलोज एंड फाइबर्स, सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं ना, वो इस तरीके के मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं इस तरीके से। तो ये हायर प्लांट्स की सेल वॉल होती है, बहुत थिक स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सिर्फ सेलुलोज से कुछ नहीं होगा, इसलिए जो ऐसे पेक्टिन जो कि जेली लाइक सीमेंटिंग सब्सटेंस है, लिग्निन जो कि एक हार्ड करने वाली हार्डनिंग सब्सटेंस है, हेमी सेलुलोज जो कि सेलुलोज जैसी एक दूसरी सब्सटेंस है, उन सब का मिक्सचर एक बनाते हैं, बहुत थिक गाढ़ा सा लिक्विड, और उसके अंदर ऐसे सेलुलोज के फाइबर्स को एम्बेड कर देते हैं, तो उससे सेल वॉल बनती है, इतनी थिक और टफ और स्ट्रॉन्ग होती है वो। तो दिस इज़ यूजली परमिएबल, सेल वॉल इज़ यूजली परमिएबल, ठीक है, जो सेल वॉल है वो परमिएबल होती है। फिर क्या है, बट सुबेराइज सेल वॉल्स आर इम्परमिएबल, मतलब एक और एक सब्सटेंस होती है सुबेरिन, ठीक है, उस सब्सटेंस को लेट्स शो विद ब्लू। तो वो जो सब्सटेंस होती है ना, कुछ सेल वॉल्स में जब डल जाती है
उसमें क्या होती है, एक सब्सटेंस सुबेरिन, कुछ सेल वॉल्स में जो है वो सब्सटेंस इस तरीके से ऊपर कोट हो जाती है, इस तरह से ऊपर सब्सटेंस की ना कोटिंग आ जाती है। हेलो, ये मम्मी को जगा रहा है। जगा नहीं रहा। क्यों जगा रहा है? सो गया। सोने देना। सो गया बेचारा। क्या बना रही हो? ये सुबेरिन है। जरा थोड़ा सा देख क्यों बॉटल पे खत्म हो गई ले लो। दीदी आपकी बॉटल, दीदी आपकी बॉटल में तो साइड में रख। हाँ, जिससे सुबेरिन। पैर ही पड़ जाएगा। यही ना अंदर, कोई नहीं, किसका पैर, कोई नहीं चल रहा है इधर। अगर वो यहाँ से आएगा तो उसको दिख भी जाएगा। Usually they are permeable. डरी मैं खाऊंगा से। Suberized. अरे सोने देना मम्मी को। कहता चाची, ये कहता मैं नहीं सोने दूंगा मम्मी को। तेरी क्लैजर लाइट भी ले ली। खुशी, तूने पहले ही इसे तोड़ दिया है, अब तू इसे लेने की कोशिश कर। Suberized cell wall, मतलब कि जिन सेल वॉल्स में सुबेरिन नाम का, आपने इसका स्केल क्यों घुसा रखी है? हाँ मैंने मार्किंग कर रखी है मैंने। तो सुबेराइज्ड सेल वॉल्स दे हैव सुबेरिन, है ना। दिस इज एन इम्पर्वियस सब्सटेंस, दिस डज नॉट लेट वाटर, जैसे अगर तुमने वाटर को पोर किया है तो इट विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट, अगर वाटर पोर किया है तो इट विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट, वाटर जो है नहीं जा सकता है सुबेराइज्ड सेल वॉल्स में, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। So suberized cell walls are impermeable, that is they are not permeable, they are not. सेल वॉल को सिक्रीट कौन करता है, सेल वॉल बनती कहाँ पे है, सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म में बनती है, जो मैट्रिक्स है ना, बताती हूँ तुम्हें अभी क्या होता है। ये एक सेल होता है, ठीक है, या और बड़ा बनाते हैं, मज़ा आता है ये करने में। उफ, यस, ये एक हमारा सेल होता है, इसमें ना प्रोटोप्लाज्म में ये सेलुलोज के धागे पड़े हुए हैं, फाइबर्स, है ना, थोड़ा जो है पेक्टिन पड़ा हुआ है, कलर्स में थोड़े चेंज कर देते कुछ नहीं जाता, ये ऐसे थोड़ा पेक्टिन पड़ा हुआ है ना। अब ये बच्चा बेबी सेल है, इसमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और ये जो है ये तुम्हारा थोड़ा हेमीसेलुलोज पड़ रखा है, पड़ा हुआ है ना, ये जो है हार्डनिंग सब्सटेंस होती है, सेल को हार्ड करता है, ये इधर पड़ा हुआ है, इस तरीके से डिपॉजिट हो रखा है इधर थोड़ा थोड़ा था, है ना, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा हेमीसेलुलोज पड़ा हुआ है इधर, सेलुलोज जैसी एक सब्सटेंस। अब क्या होता है ना कि धीरे धीरे ये डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जैसे ये जो तुम्हारा लिग्निन है, इसको थोड़ा सा वॉल के कॉर्नर्स पे डिपॉजिट हो जाता है ना, सेल के कॉर्नर्स पे डिपॉजिट होता है, जिससे ये एक बैंडेज की तरह होता है कि अब ये सेल की शेप फिक्स हो गई, है ना। ये मैं तुम लोग को ऐसे ही बता रही हूँ, ऐसा सच में होता है कि नहीं होता है आई डोंट नो, बट ये इस तरीके से ना डिपॉजिट हो जाता है कि बैंडेज जैसे की तरह, कि अब ये मूव नहीं कर सकता, ये सेल की फिक्स शेप हो गई, है ना, सेल की ये शेप हो गई। फिर ना इसके बाद लेट्स से कि पेक्टिन जो है, जो जेली लाइक सब्सटेंस है, वो बाकी के सेल में आ जाता है इस तरीके से, है ना। सेल मेम्ब्रेन तो एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है, बट इस पेक्टिन ने अब इसको इस तरीके से कर दिया कि अब ये मूव नहीं करेगी, बट ये जेली लाइक है, तो इसके ऊपर हार्डनिंग सब्सटेंस एक लिग्निन भी आ जाती है, लिग्निन जो इसको हार्ड करती है ना। और थोड़ा पेक्टिन और थोड़ी जेली, फिर से थोड़ा लिग्निन, फिर से थोड़ा लिग्निन, फिर से थोड़ा पेक्टिन, जो कि एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है, तो सीमेंट जो है वो आ जाता है और बोलता है कि अब मैं नहीं हटूंगा इधर से, मैंने सीमेंट कर दिया है, ठीक है।
और ये सब ना मिक्स हो जाते हैं। फिर इसके पास हेमीसेलुलोज आता है जो कि इनको इवन कर देता है, जो पर्पल कलर का लैवेंडर कलर, ये तुम्हारा हेमीसेलुलोज इनको एक मैट्रिक्स में बना देता है कि अब ये लिक्विड है, क्योंकि जो फाइबर्स हैं वो लिक्विड में ही आएंगे अच्छे से, तो अब ये लिक्विड बन जाता है अच्छा खासा। इसकी शेप भी लिग्निन और पेक्टिन ने इसकी शेप बना दी। लिग्निन ने इसको हार्ड कर दिया, पेक्टिन ने इसको सीमेंट जैसा बना दिया। ये हायर प्लांट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अब इससे क्या हो गया कि अब लिग्निन और पेक्टिन ने मिलकर इसकी शेप अच्छी कर दी है और हेमीसेलुलोज ने इसको लिक्विफाई कर दिया है। तो अब जो है सेलुलोज के स्ट्रैंड्स जो हैं वो आके इस तरीके से भर भर के जो है एसोसिएट होते, सारे सेलुलोज के स्ट्रैंड्स आके इधर एसोसिएट हो जाते हैं, सारे धागे, ठीक है। और इसलिए इसको सेलुलोजिक सेल वॉल बोलते हैं। देखो सेलुलोज कितने धागे आ गए, बाकी सारे तो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में लिक्विड बन के रहे हैं, बट सेलुलोज कितने धागे आ गए। तो ये एक तरीके से प्रोटोप्लाज्म में ही सिक्रीट होती है। सेल वॉल सेल के साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सब के मटेरियल से ही बनाई जाती है। और अब ये प्लांट की सेल वॉल बन गई, ये इसकी रेसिपी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है कि स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं। द सेल्स ऑफ द प्लांट टिश्यू जनरली रिमेन सीमेंटेड टुगेदर बाय एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नोन एज मिडल लैमेलम, ठीक है। अब जो है सेल वॉल की एक्चुअली 3 लेयर्स, ये तो मैंने तुम लोगों को एक ईजी वे में समझा दिया कि प्रोटोप्लाज्म कैसे सिक्रीट करता है, राइट। बट इसकी सेल वॉल की एक्चुअल में 3 लेयर्स होती हैं। इधर भी मैंने तुम लोगों को 3 लेयर्स दिखाई हैं, बट 3 लेयर्स इनकी मेनली होती है। And the cells of the plant tissue generally remain cemented together by an intracellular matrix known as the middle lamellum. So there are actually 3 layers, and they remain cemented together by an intercellular matrix, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं। अब तीनों लेयर्स को एक साथ कैसे रखोगे, ये पहली लेयर है, ठीक है, ये अच्छे से बनी हुई है, ये पहली लेयर, ठीक है। फिर ये दूसरी लेयर बना दी हमने, नहीं, फिर हम क्या करते थे, कैसे बनाते, ये पहली ब्रिक रखी, फिर थोड़ा सा सीमेंट लगाया, सीमेंट लगाने के बाद हमने दूसरी लेयर बनाई। तो ये एक तरीके से कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, प्लांट्स इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं। हमने दूसरी लेयर, फिर से थोड़ा सीमेंट लगाया अच्छे से, फिर जो है तीसरी लेयर बना दी। तो ये होता है सेल वॉल का एक्चुअल स्ट्रक्चर। 3 लेयर्स होती हैं और बीच बीच में जो सीमेंट होता है उसको हम मिडल लैमेलम बोलते हैं, वो पेक्टिन से बनाता है ना, वो भी एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस ही है। तो मिडल लैमेलम क्या होता है, पहले सीमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट मिडल लैमेलम में ही आता है, बिकॉज ये बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिकॉज जैसे हम सीमेंट से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वैसे ही जो सेल वॉल है वो भी सीमेंट से ही कंस्ट्रक्ट होती है। तो इस मिडल लैमेलम के बारे में थोड़ी बात कर लें। इट इज़ एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स दैट लाइज बिटवीन द एडजेसेंट प्लांट सेल्स। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये सेल के अंदर का एक मैट्रिक्स होता है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। हाँ दीदी ये ना फ्रूट टेलर है टॉफी। अच्छा, ये ना आप तक लोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। ये ना फ्रूट टेलर है, ये आप खा के देखो, बहुत यम्मी होती है, आप गटक भी सकते हो। है, हाँ, खोल, चिंगम के जैसी नहीं होती। आधी आधी देना। आधी ठीक है, फिर मैं आधी रिवेंज को भी दे दूँगी टेस्ट के लिए। ऐसी होती है, अच्छा, बहुत यम्मी होती है, लेकिन चिंगम जैसी नहीं होती। मैंने उन अंकल से पूछा था ना, उन्होंने कहा चिंगम के जैसी आपको लगती है। कौन से अंकल से? हैं? अरे वो वाले कोटक? प्रेस, हाँ। तो है ना, उन्होंने कहा था चबाना नहीं है, गटकना है सिर्फ, चूसना है। पहले जब इसका टेस्ट खत्म हो ना, तब थोड़ा सा ऐसे बीच के दांत से चबा के गटक लेना। कोटा से लाइए? हाँ, कोटा से लाई हूँ। ये वहाँ पे वो जो बेस्ट डी मार्ट खुला है ना, नहीं जियो मार्ट, वहाँ से लाई हूँ। मैं तो पापा से कहती, पापा इमली भी देना। पापा ने कहा इमली बहुत खट्टी होती है, उनको मैं खिला देना और इमली के बाद। अभी ये मैं ना दिव्यांश को भी टेस्ट कराती हूँ, आप गटक लेना। ठीक है, थैंक यू।
Intracellular matrix. It lies between adjacent plant cells. इन दोनों के बीच में एक सीमेंट रहता है जिससे ये एक साथ रहें, है ना. जब हम लीफ को झाड़ते हैं, हिलाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सेल्स गिरते हैं. बिकॉज ऑफ दिस मिडल लैमेलम, ये एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल्स के बीच में रहता है, जिससे वो ना एक दूसरे से मिले रहें. ठीक है, वो चिपके रहें. ठीक है, तो एक सीमेंट है. इट इज़ थिन. ये थिन होता है. खा लेगा. तो दिव्यांश के साथ जाकर ले आई थी क्या? दूध भी, ब्लू ग्रीन पेपर. ठीक है, थोड़ी देर बाद ना हाँ, अमोर्फस सीमेंटिंग लेयर. ठीक है. खाने में क्या है वैसे? क्या है खाने में? कढ़ी चावल, आलू की सब्जी, कल की रखी हुई सब्जियाँ. मैं खा लो, आ जाओ. आओ ना. अब सोच रही हूँ. It's also a cementing layer. Cementing layer and is mainly made up of calcium pectate. Pectate मतलब pectin. कैल्शियम पेक्टिन. कैल्शियम और पेक्टिन को मिला के जो है एक मिक्सचर बनता है. ये हमने कैल्शियम डाल दिया, वाइट कलर का ही होता है. फिर हमने एक जेली लाइक सब्सटेंस पेक्टिन डाल दी, जो कि एक हार्ड सीमेंटिंग लेयर होती है. दोनों को मिक्स करके जो है सीमेंट बनता है. तो ये प्लांट्स के सीमेंट की रेसिपी है, कैल्शियम और पेक्टिन. ठीक है, तो इट इज़ थिन, इट इज़ अमorphous, there is no defined shape, it is just like cement, and the ingredients are calcium and pectin. Calcium and magnesium ions help in cross-linking the pectic compounds binding to the adjacent cells. Actually just pectin ही होता है. pectin जो है वो ही एक सीमेंट टाइप्स होता है. ये पेक्टिन है. ठीक है, और जो है जो पेक्टिन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हेल्प इन क्रॉस लिंकिंग द पेक्टिक कंपाउंड्स. जो कैल्शियम के आयंस होते हैं वो इधर होते हैं. अच्छा किया, खा लिया. टाइम पे खा लेना चाहिए. गलत किया इन बच्चों ने. मना करके.
जो पेक्टिन है उसके अंदर इंटरनल लिंकिंग भी होनी चाहिए। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम भी होती है, मैग्नीशियम भी होते हैं इनमें। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं वो मिलके क्रॉस लिंकिंग में बहुत मदद करते हैं। कैसी लगी? बहुत मस्त। मैंने तो खाई नहीं। वो नहीं खाता वैसे भी। प्यास चल रही थी ना उसकी, तो मम्मी ने मुझे वैसे ही टोक दिया। ये क्या होगा, चल क्यों नहीं रहा? चलेगा। चल गया। ठीक है। So this is your pectin. हाँ, so this is your pectin. These are your pectic compounds they say. Pectin के बने हुए pectic compounds. क्या ये? नहीं कुछ जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी, ठीक है। And these are calcium ions and the blue ones are magnesium ions. So इस तरीके से वो होते हैं कुछ चीज़ें। कुछ अभी मुझसे मत पूछ कुछ, मैं तेरी पढ़ाई जब आएगी ना, तेरी जब डिफ़िकल्ट होगी ना, तब तू सोचेगी कि तब पढ़ना, ठीक है। अभी तेरी इजी पढ़ाई ना, तो इजी पे ध्यान दे, ठीक है। सो फिर ये जो है जब ये ऐसे बाउंड हो जाते हैं तो ये एक थिक सा गाढ़ा सा एक लिक्विड बन जाता है। इसको हम बोलते हैं ठीक है, इस थिक से गाढ़े से लिक्विड को हम बोलते हैं ठीक है, इस थिक से गाढ़े से लिक्विड को हम बोलते हैं हाँ आगे कैल्शियम पेक्टेट। सो दिस इज़ द सीमेंट। सो इंटरनल स्ट्रक्चर कैल्शियम पेक्टेट का भी मैंने आपको बता दिया कि जो पेक्टिक कंपाउंड्स हैं उनको लिंक करने के लिए बाइंडिंग कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस हेल्प इन क्रॉस लिंकिंग द पेक्टिक कंपाउंड्स बाइंडिंग टू द एडजेसेंट सेल्स इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द सेल प्लेट विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। तो ये जो है ये तुम्हारे पेक्टिक कंपाउंड्स की स्टोरी है। ये कैसे डेवलप होती है, जो सेल प्लेट फॉर्म होती है सेल डिवीजन के वक्त, इस तरीके से ये जो सेल है इसमें जो है सेल प्लेट फॉर्म हो रही है, ठीक है। जब ये सेल प्लेट फॉर्म होती है ना, इसी सेल प्लेट से तुम्हारे ये आयंस डेवलप होते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये इसी सेल प्लेट से डेवलप होके इस तरीके से जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या बताया गया है कि कैल्शियम पेक्टेट इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम सेल प्लेट विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ द सेल डिवीजन। जो कैल्शियम जब साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना होता है तब जो सेल प्लेट्स फॉर्म होती है, तो उन्हीं से ये बाइंडिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती हैं। और ये पेक्टेट कंपाउंड्स होते हैं। पेक्टेट कंपाउंड्स को कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हैं उन्हें बाइंड करते हैं, क्रॉस लिंक करते हैं, और इसी तरीके से ये कैल्शियम पेक्टेट सीमेंट बन जाता है। और ये जो है सेल प्लेट्स जो हैं उससे फॉर्म होते हैं ये कैल्शियम पेक्टेट जो सीमेंट है, ठीक है। वेसिकल्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिक्रीट द सेल प्लेट ड्यूरिंग साइड। और जो सेल प्लेट कैसे बनती है, गोल्जी अपैरेटस बनाता है। तो एक दूसरे से बनता है, जैसे गोल्जी अपैरेटस के जो वेसिकल्स होते हैं, आई विल टेल यू। द सेल प्लेट इज फॉर्म्ड बाय द वेसिकल्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो वेसिकल्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू cell plate and cell plate gives rise to your calcium pectate compounds, ठीक है। जो पेक्टिक कंपाउंड्स वगैरह हैं ये सेल प्लेट से फॉर्म होते हैं, और ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये दे गिव राइज टू मिडल लामेला विच इज़ योर सीमेंटिंग लेयर, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये होता है। और ये सेल प्लेट कब बनती है, साइटोकाइनेसिस के वक्त। उस वक्त गोल्जी इमीडिएटली वेसिकल्स रिलीज़ करता है जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है, और इससे सेल प्लेट बनती है, क्या फिर कैल्शियम पेक्टेट बनता है जिससे जो है सेल वॉल
पेक्टिक कंपाउंड्स बनते हैं जो मिडिल लैमेला, जो कि सेल वॉल की लेयर्स को सीमेंट करता है एक दूसरे के साथ, और एडजेसेंट सेल्स को जो है सीमेंट करता है. Okay, then we will talk about each of the layers. So first is our primary cell wall. Now lies inner to the middle lamellum. जो है मिडिल लैमेलम है, सबसे नीचे जो है प्राइमरी सेल वॉल लाई करती है. ठीक है. इट इज़ थिन, बहुत पतली सी होती है, इलास्टिक होती है, मतलब खींच सकते हो, एंड अलाउज द सेल फॉर इलोंगेशन. इतनी थिन सी पतली सी जो है इलास्टिक सी होती है ये, और इसकी वजह से जो सेल है वो इलोंगेट हो सकता है. तो ये होती है प्राइमरी सेल वॉल, थिन एंड स्ट्रेची, इलास्टिक, एंड इट अलाउज सेल फॉर इलोंगेशन. ओके, ये पतली और न्यू होती है. इट कंसिस्ट्स ऑफ हाँ, इसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है, पहली बात. हेमी सेलुलोज होता है. ठीक है, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है. इसमें पेक्टिक सब्सटेंसेस होती हैं. ऑब्वियसली मिडिल लैमेला उसके सेल्स को बाइंड कर रहा है, तो पेक्टिक सब्सटेंसेस एंड प्रोटीन्स भी थोड़े बहुत होते हैं. तो ये सब जो है प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. इट इज़ कम्पोज ऑफ एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर्स इन अ जेली लाइक पेक्टिनेशियस नेटवर्क्स. ओके, आई मैं आती हूँ. This is a jelly-like pectinaceous. Pectin is always used in jellies. When you're making jellies, you're making gels, you definitely will use pectin. राइस होता है, राइस में क्या होता है? स्टार्च होता है. तो जब हमने उबाला तो स्टार्च अलग हो गया, बाहर आ गया निकल के. तुम्हारे ले गई. अच्छा, I'll draw it with the scale to get the. ये मैं तुम्हारी, हाँ माई, प्राइमरी सेल वॉल बना रही हूँ. गुनगुना दी, मम्मी बुला रही है. अभी तो सिर्फ 5 बचे हैं. अभी तो